हेलो गाइस, क्या हाल आपका? मैं भी ठीक हूँ। हाँ, मुझे पता है मैं लेट हूँ, मगर जब ये ट्रेलर्स आए थे ना, तब मैं थंडरबोल्ट्स ही देख रहा था एंड मैंने देख ली। मुझे अच्छी लगी। इस मूवी के बारे में एंड पे बात करूंगा। सबसे पहले आयरन हार्ट के बारे में स्टार्ट करते हैं। मगर मैं हंस क्यों रहा हूँ? हंस मैं इसी वजह से रहा हूँ, कमेंट्स पढ़ के। आपको भी पढ़ाऊंगा, वहाँ में बड़े फनी है। मगर तो स्टार्ट करें। Director of Black Panther, Wakanda Forever. Oh, sounds so good. For real? Welcome, Riri. In less than 3 minutes, the air in this elevator will no longer be breathable. Oh, what is this? Your interview. You'll suffocate and die unless you break into the device on the floor, where you'll find a gas mask. Good luck. Screw this. और ये इतना लंबा दिखाना जरूरी है? वो इसको जीनियस दिखा रहे हैं, आयरन मैन जैसा। ये पहले करना चाहिए था। I heard Riri Williams was a genius. So you in or out? Riri, I see you. I see you're fed up, waiting to be acknowledged for your greatness. ओह, You are not the first genius at MIT. How come you're not working at one of those fancy tech firms? After my internship abroad, I want to build something undeniable. Something Important? यूनिक। iconic. देखो, I can give you the tools to help you carry out your vision. मैंने कमेंट्स पे पढ़ा था। But anyone who's ever accomplished anything iconic in life has had to do some questionable things to get it done. मफिस्टो What will you do, Riri? पावर्स। You've bitten off a hell of a lot more than you can chew. I could chew a lot. ओहो, You know nothing about this man. You're gonna end up dead or in jail. This is so much bigger than that. This is wild. A shady bunker. My bunker's not shady. Would a shady bunker have that on the wall? It's literally above a crate of self-guided missiles. I'm returning those. मैं कहूँगा इस तरह का आर्मर दिखाया जाए वीएफएक्स के साथ तो मैं रेडी हूँ, मैं देख सकता हूँ। एक्सपेक्टेशन फुल लो ही होंगी ताकि हम डिसअपॉइंट ना हो, ठीक है। और मैं अभी भी कमेंट्स पढ़ के हंस रहा हूँ, बड़े फनी कमेंट्स। कमेंट्स में लिखा हुआ था आइकॉनिक, वही बना दिया जो पहले से एग्जिस्ट करता। मगर मुझे उसका मास्क बहुत अच्छा लगा, वो वाइट वाला सूट भी काफ़ी अच्छा लगा। वो सेकंड वाले में बात हो सकती है। एक्शन अच्छा लगा, वीएफएक्स अच्छे लगे, मगर क्या नाम है, वो सूट जब बिल्डअप हो रहा है ना, वो आयरन मैन ने वाली फीलिंग तो दे दिया। और जो लिफ्ट वाला था उन्होंने बिल्कुल इसी वजह से डाला होना कि क्यों, एक तो हमने दिखाना वो जीनियस है, एक तो हमने आयरन मैन जैसा दिखाना। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। ये देखो, प्रो टिप, आपको नजर आ रहा है? चलो, नजर आ रहा है। प्रो टिप, कीप योर एक्सपेक्टेशंस लो so you won't be disappointed. मैंने लाइक किया। I wanna create something iconic, create something that already exists. Black character appears on screen. The music, it's ribbon time. Tony Stark were able to make this in a cave with a box of scraps. Like it. I genuinely impressed by they haven't disabled the comments. मेरे आंसू आ गए यार, ये देखने के बाद और फनी लगा। As an electrician, I too used my teeth to remove the wire isolation. हाँ, ऐसा कॉमन है। ट्रेलर टीम, what kind of music you wanna want for trailer? Stereotype please. हाँ, ये वाला तो बात बनती है। मैंने इसी वजह से ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा इग्नोर करूँ। देखा, हर सुपर स्मार्ट
एंड अमेजिंग 3 times in first minute and half of this trailer। भाई करना पड़ेगा। ओ सुपर सुपर भी कवर किया मैंने, कि अभी वीडियो देखे आया था। फ्रॉम ग्रीन डेल टू MIT way to open the deal and are getting more screen time than the War Machine ever did is crazy। सोचने वाली बात है। Her suits look like it's made of vacuum parts। I mean हो भी सकता। Lol, I thought she was going to build a suit inside the elevator। Riri Williams built that suit in an elevator with a bunch of scraps। यार कितना डोस कर दिए लोग। मुझे अच्छा लगा। ट्रेलर की बात नहीं करूँगा, उसके VFX की बात करूँगा, ठीक है। सुपरमैन का भी आया, रिएक्शन करता हूँ यार, मगर आई मीन ठीक है, एक्सपेक्टेशन लो थी। मैंने पहले भी रिएक्शन किया हुआ यार। मैं बताता हूँ, थंडरबोल्ट्स मैंने देखी, उससे पहले मैंने देखी थी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। जिस तरह मैं सुन रहा था अच्छी मूवी नहीं, मैंने जब देखी ना मैं थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड भी हुआ एंड नहीं भी हुआ। मतलब जिस तरह से रेड हल्क को और उसको दिखाया ना मिस्टर ब्लू को, मैं बिलीव नहीं करोगे आप, मैंने उससे पहले इनक्रेडिबल हल्क देखी दोबारा एंड मुझे इतना मज़ा आया ना अभी भी। मैंने कहा ये हल्क तो हमें चाहिए था। मैं मीन मुझे उसके सीन्स याद थे, वो जंप वो एक्शन याद था मुझे, मगर यार मज़ा आ गया जब दोबारा देखी तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई। जैसे मिस्टर ब्लू के बारे में, मिस्टर ब्लू कौन था पहली बार देखने में मुझे इतनी समझ नहीं आई थी। उसके बाद जो वो था ये अबोमिनेशन, इसकी भी ना मुझे इतनी समझ नहीं आई थी। अबोमिनेशन जो था उसमें वो बना कैसे, हल्क तो हूँ तो सेम ही था, इसी वजह से बना था चेंज, क्योंकि उसके ऊपर पहले एक सीरम डाल दिया हुआ था और फिर हल्का हूँ लगा तो वो वैसा बन गया, जबकि हल्क ऐसा था। और उसके बाद जो मिस्टर ब्लू के साथ हुआ यार, उसके ऊपर तो बिल्कुल हल्का ना खून गिरता ही है, मगर दिखाया था दिमाग के ऊपर ही गिरता सिर्फ, तो उसका दिमाग बढ़ाने लग जाता। मगर जो इसमें दिखाया ना ब्रेव न्यू वर्ल्ड में, आई मीन ठीक है, क्रीपी लगा मुझे। इसको पुल ऑफ कर सकते थे, मगर इसको ऐसे ही विलन को निकाल दिया। फिर जो रेड हल्क की और उसकी फाइट थी ना कैप्टन अमेरिका की, कमाल लगी, VFX भी अच्छे थे उसमें। एंड जो उससे पहले भी बैटल हुई थी वो अपने एस्पेसितो वाले एक्टर से, तो उसकी फाइट भी अच्छी थी। मतलब सीधा आके ऐसे चाकू मारना, ऐसे फैल्कन भी आके फिर ऐसे मारता है, मेरे लिए फैल्कन ही है, तो वो अच्छी फाइट थी। अगर वो उसको पुल ऑफ करते ना ट्रेलर में ना, उसी को विलन रख रहे होते ना, मज़ा आ जाना था। फिर बाद में मूवी में दिखाते, आधी मूवी होती तो कहते तो वो तो विलन है ही नहीं, विलन तो कुछ और एंड पे आके हमें पता लगता कि ये जो मिस्टर ब्लू है ये करवा रहा है एंड इसका प्लान क्या है, उसको एक्सपोज करना। एंड जब वो एक्सपोज होता है लाइव, जिस तरह भी हुआ है, एंड फिर उसको हमें और उसको शौक मिलता कि हमें तो शुरू से दिखाते दवाइयाँ जो ले रहा है बीमारी की वजह से ले रहा है ताकि मर ना जाए। वो ये वाली बात कर रहे होते कि ये वाली बात एक्सपोज हो जाए कि वो मरने लगा कुछ टाइम में, मगर वो उल्टा ही हो, वो रेड हल्क बनता। एंड हम जो बैठे होते ना सिनेमा में, वो एपिक एब्सोल्यूट सिनेमा होना था, मोमेंट बहुत कमाल होना था। फिर वो उसको उधर लेके जाता है, वो दिमाग वाली काफ़ी चीज़ थी कि वो बेटी के साथ आता था उधर, तो फाइट भी उधर ही होती है। उसके बाद बस यार मूवी ने ये गलती कर दी, इस वजह से वो मैं कहता हूँ फ्लॉप हुई है। इतनी भी बुरी नहीं थी जिस तरह वो थोर लव एंड थंडर से भी बुरा रेटिंग दे रहे थे, तो ना, थोर लव एंड थंडर से काफ़ी अच्छी है। उसके बाद थंडरबोल्ट्स की मैंने एक्सपेक्टेशन तय थी, ट्रेलर्स के जितने भी रिएक्शन किए थे, जितने भी आए थे मैंने किए थे। उसके बाद इसमें एंड वाले में बता दिया था मेरी एक्सपेक्टेशन इतनी है, मगर अच्छे रिव्यूज़ आ रहे थे एंड कुछ तो ऐसे आ रहे थे कि एंड गेम के बाद ये ऐसी मूवी है जो मुझे पसंद आई है, एंड गेम के बाद ये कमाल मूवी आई है, इससे इतनी कमाल कोई नहीं आई। एंड मेरी थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन बढ़ी थी, मगर मार्वल ने क्या मुझे स्पॉइलर दे दिया। थंडरबोल्ट्स का क्या नाम रखना था इन्होंने, मुझे लगा डार्क एवेंजर्स होगा, इन्होंने न्यू एवेंजर्स कर दिया, मैं और एक्साइटेड हो गया। फिर उसके बाद मैं और देखता रहा शोर से मुझे स्पॉइलर मिलते रहे, हालांकि मैंने फुल अवॉइड करने की कोशिश की। फिर वो लड़की वाला सीन आ गया, वो जब लड़की आई उसको बचाता है, वो ब्लिप, मतलब ब्लिप नहीं वॉइड होती है। मैं उधर ही ऐसे, मैंने कहा ये मार्वल कार्ड है, मैंने उधर ही मूवी देखी, जाके फटाफट मैंने मूवी देखी। एंड मूवी देखते वक्त भी मैं उस सीन में फुल हैरान हुआ था। एंड जो मैं कहूँगा सेंट्री बॉब को दिखाया है, उनकी एक्टिंग यार बहुत कमाल थी। उनके साथ जो टीम के साथ चल रहा था सारा कुछ, सीन वगैरह फनी वगैरह मोमेंट वगैरह, वो भी अच्छे थे। मूवी मुझे थोड़ी बहुत स्लो लगी स्टार्टिंग से, मतलब जो मैं फाइटिंग सीन्स या फिर सेंट्री की वेट कर रहे होते हैं वो थोड़ी देर बाद जाके आता है, मगर जब आता है ना तो मज़ा आता है उस फाइट में। हालांकि उस फाइट में एक प्रॉब्लम है, वो मुझे अच्छी नहीं लगी, मगर
VFX CGI भी थोड़े बहुत वीक लगते हैं, मगर वो चल जाता है क्योंकि हमें सेंट्री का देखने में इतना मज़ा आता है ना कि हम कहते हैं इस तरह की एक और फाइट दे दो या थोड़ी लंबी कर दो, मज़ा आ जाएगा। मगर वो कर ही नहीं सकते थे क्योंकि वो जिससे डट के बात करे उससे मार खाने के बाद शील्ड को ऐसे पकड़ के मज़ा आ जाता है। उसके बाद जो एंडिंग वाला सीन था, वो एंडिंग वाला वो उसको बाहर निकालते हैं, वो मुझे पता लग गया था मूवी कहाँ जा रही है, एंड वो भी सही था। मैं कहूँगा उसका स्मार्ट मूव कहूँगा कि सेंट्री की बैक स्टोरी भी दिखा दी बिना कुछ दिखाए, वैलेंटीना की भी दिखा दी स्मार्टली, बाकी सारे कैरेक्टर्स की कम दिखाई मगर दिखा दी, एंड मैं कहूँगा उसकी भी दिखाई येलेना की, ब्लैक विडो की। तो वो मूवी अच्छी थी, मूवी मैं अच्छी कहूँगा, बहुत ऐसे अच्छी नहीं कहूँगा कि थंडरबोल्ट्स के एवेंजर्स एंड गेम के बाद यही मूवी अच्छी थी। इसने मुझे डिसअपॉइंट किया मूवी ने, थोड़ा सा तो किया क्योंकि इसी वजह से शायद किया, वरना मुझे अच्छी लगती मूवी बाकी जितनी, मगर मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट किया। और एंड वाला सीन तो येलेना कह रहा हूँ, वैलेंटीना को पकड़ने जाते हैं, ऐसे गुजरते हैं, वो अनाउंसमेंट कर देती है दी न्यू एवेंजर्स, वो काफ़ी शॉकिंग था। एंड फिर उसके बाद जो पोस्ट क्रेडिट सीन, उसका मुझे पहले ही पता लग गया था, स्पॉइलर मिल गया था, मगर हाँ ये नहीं पता था कि सैम उन पर सूख कर रहा है, और सारे उस पर नाराज़ हो रहे हैं या हेट कर रहे हैं कि वो क्यों, हालांकि कैप्टन अमेरिका में फ़ोन में उसकी तारीफ़ कर रहे थे, अब हेट कर रहे हैं। यार कुछ बाहर निकलो यार, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेते ही हेट, थोड़ा खुद दिमाग लगाओ, वो क्यों सू कर रहा है, हालांकि बकी उसका इतना अच्छा दोस्त, वो क्यों सू करेगा, क्योंकि इस टीम को बकी ने नहीं अनाउंस किया, इस टीम को अनाउंस किया येलेना ने, वैलेंटीना ने। ओके, वैलेंटीना ने अनाउंस किया और उसको पता है, बकी को भी, और उसको भी पता है सैम को कि वैलेंटीना ने किस तरह के काम किए हैं, और सेंट्री तक को लेके आए, जो कि बकी ने बताया ही होगा उसे। तो उसने कहा होगा बंद कर दो, न्यू एवेंजर्स के नाम से ना बेचो, क्योंकि एवेंजर्स का नाम खराब हो रहा है, एंड जो जिनसे उसका बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा, ये कैप्टन अमेरिका का, सैम का। तो इसी वजह से वो सू कर रहा होगा, एंड उसमें टीम भी तो वैसी ही है, कैप्टन अमेरिका की सस्ती कॉपी रेड गार्डियन, उसके बाद ब्लैक विडो की कॉपी बहन उसकी जिसने कत्ल की है, फिर वो उसको तो जानता ही है, जॉन वॉकर का तो जानते ही है वो कि उसने किस तरह कत्ल किया था। मगर यार इन सब की एक्टिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जॉन वॉकर को देखने में मज़ा आ जाता है भाई, मैं उसका फ़ैन हूँ। उसके बाद येलेना की, फ्लोरेंस प्यू की भी कमाल एक्टिंग थी। उसके बाद बकी को मुझे थोड़ा बहुत वीक लगा, मगर दिखाया है अच्छा, दिखाया बुरा नहीं दिखाया, मगर वीक लगता है वो यार, कि उसको उसकी थोड़ी बहुत और या ट्रोमा या विंटर सोल्जर वाला ट्रोमा दिखा देना चाहिए था, मगर उन्होंने पहले ही बता दिया था, क्लियर कर दिया था कि वो पास ऑलरेडी हो गया हुआ, अपनी उसने लाइफ में मूव ऑन कर लिया हुआ। और इसके बाद एक और कैरेक्टर की बात करना चाहूँगा, गोस्ट मैंने सोचा नहीं था कि मैं टास्क मास्टर के लिए ज़्यादा एक्साइटेड था आफ्टर ब्लैक विडो। हालांकि मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट हुआ था कि मुझे पता है वो टास्क मास्टर कैसा है कॉमिक्स में, मैंने पहली दफ़ा देखी भी नहीं थी। मुझे जब पता लगा था ना कि इस तरह से टास्क मास्टर को वेस्ट किया है, मैंने हाफ मूवी देख के छोड़ दिया था ब्लैक विडो। मैंने तो अभी देखी थी जाके इटर्नल्स के साथ, जब मैंने इटर्नल्स देखी थी ना, उसका रिव्यू किया था, तो मैंने अभी देखी थी ब्लैक विडो। और कह रहा हूँ कि जब मैंने देखी ना, मैंने कहा चलो इतनी भी बुरी मूवी नहीं थी जितना इसको मैंने हेट दे दिया था, तो इसी वजह से मैंने देख लिया, मुझे ठीक लगी। मैंने कहा अब तो आगे अच्छा कर देंगे टास्क मास्टर के लिए। एंड वो जो शुरू में आती है मास्क खुलता है, अच्छा सीन था, मगर उसके साथ जो किया ना यार, मैं बड़ा एंग्री हूँ। मगर उसको भी अगर ले लेते आगे जाके, एंड आगे जाके सेंट्री का तो मरवाते ना, सेंट्री जब बनता टावर में तो वो मरवाते, या फिर उसको दिखाते ही गए वो तभी आती है, शुरू में वो आती नहीं है मारने, किसी वजह से किसी अपने उस पर गई होती है काम पे, एंड उसको जब पता लगता ना तो उसका ये प्लान ही यही होता कि क्या नाम है, जो सेंट्री है ना उसी से मरवा दूंगी मैं, अगर इसने कुछ करने की कोशिश की, वैसे कर नहीं पाएगी, क्योंकि वो मारती भी कैसे सबको, क्या नाम है, वो उसका मूव कॉपी कर लिए थे, मगर घोष से उसको आके मारती थी, ये पता नहीं क्या सीन था। मैंने स्पॉइल क्यों कर दिया मुझे नहीं पता, मगर इतने स्पॉइलर मिल गए तो मैं दे भी दूंगा, ये क्या फ़ायदा। ऊपर से इतनी लंबी वीडियो हो गई, मगर मैं बोल ही जा रहा हूँ, बोलूँगा मैं। गाइस GTA 6 का ट्रेलर आ गया था, मैंने अपने सेकंड चैनल पर रिएक्शन किया है, ट्रेलर नंबर 1 का भी किया था जब आया था, ट्रेलर नंबर 2 का भी कर दिया, टेस्टिंग हार्ड है, आप जाके देख सकते हो, वरना शॉर्ट्स अपलोड किए मैंने इस चैनल पे, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। इस चैनल पे सपोर्ट नहीं मिला, मगर सेकंड चैनल पे टेस्टिंग हार्ड पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, क्योंकि मैंने GTA 6 के ट्रेलर्स अपलोड किए शॉर्ट्स में भी, एंड उधर भी अच्छे व्यूज़ आए, एंड GTA 6 के ऊपर चले व्यूज़, एंड क्या नाम है GTA 6 शॉर्ट्स से और ऊपर चले। फिर मैंने अपना एक शॉर्ट अपलोड कर दिया माइनक्राफ्ट वाला, वो और ऊपर चला गया, एंड फिर उसके बाद माइनक्राफ्ट रिव्यू जो मैंने इधर भी किया था उधर भी कर दिया मैंने, ऐसे ही मैंने कहा गेमिंग है तो करना बनता है,
वो भी ऊपर चढ़ गया। एंड मैंने वीडियो एक अपलोड की माइनक्राफ्ट की जो कि और ऊपर चढ़ गई, तो सब्सक्राइबर मेरे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो मैं उस पर ज़्यादा रहूँगा एक्टिव, तो आप भी जाके देखना। इतनी लंबी बात कर दी है मैंने। बात जिसकी करनी थी घोस्ट की, वो घोस्ट ना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो मैं उसको देखने के लिए एक्साइटेड हूँगा, मगर इसके बाद मैं एक्साइटेड हूँगा। हालांकि मैं उसको और देखना चाहता था, उसका ट्रॉमा दिखा सकते थे, मगर ट्रॉमा क्या था, वो उसमें भरी हुई थी। शील्ड में पहले काम करती थी ये वो, तो मैंने जब एंडमैन देखी थी वैसे निकल गई थी। मुझे लगा, मैं कहता था एंडमैन के एंड पे ही मार देते, अच्छा था। कुछ तो लगता कि विलन मरी है, मगर उन्होंने मारा नहीं था। और मैंने कहा बस। एंड यार मुझे समझ भी नहीं आई, वो जो आंटी आती हैं क्वांटम में जैसे क्वांटम रियल से, वो आती है, उसको अपनी पावर से ठीक करती है, उसकी पावर तो कभी दिखाई नहीं बाद में। काफ़ी लूप होल वहाँ पे शुरू होते हैं एंडमैन 2 में, एंडमैन 3 में काफ़ी लूप होल होते हैं कि जब वो वापस आती है तो एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाते हैं कि वो एंडमैन को वापस भेजते हैं। अगर उसे कैंग के बारे में पता था तो उसे वापस भेजना ही नहीं चाहिए था, मगर वो कैंग वाला बाद में स्टार्ट किया था। एंड इसका ये भी हल निकल सकता है कि उसने सिर्फ फ्रंट वाली जगह पे, मतलब बिल्कुल पास में ही भेजा था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एंड बिल्कुल अंदर नहीं भेजा था। मगर उसे क्या पता था कि वो ब्लिप हो जाएंगे। वॉइड होना ज़्यादा खतरनाक है ब्लिप से, क्योंकि ब्लिप तो हो गया, आपको दर्द भी नहीं होगी, आप मर गए, आप वापस भी चलो आगे तो आपको कुछ तो होगा कि मतलब कि आपको दर्द नहीं हुआ और एकदम आगे दुनिया चेंज होगी, फ्यूचर में आप पहुंच गए होगे, टाइम ट्रैवल आपने कर ली। मगर जब आप वर्ल्ड में चले गए तो वहाँ पे आप हमेशा के लिए फंस जाओगे, एक ही ट्रोमा अपना डार्कस्ट वाला देखते जाओगे, वरना ट्रोमा ही ट्रोमा देख देख के कभी ना पागल हो के मार ही जाओगे, वरना लाइफ के लिए जिंदा रहोगे। वो जो इन्होंने ये वाला टेक लिया ना वर्ल्ड का, ये मुझे अच्छा लगा, काफ़ी स्मार्ट था। सेंट्री वाला भी अच्छा लगा, एंड वो एंडिंग वाला सीन, वो फंटास्टिक फोर, मैं कहता हूँ अच्छा लगा। अब मैं सोच रहा हूँ तो मूवी अच्छी लग रही है, 5 में से 4 स्टार मैं दूंगा, अच्छी लगी। अब तुम लोग बताना करूँगा कि आपको कैसे लगे, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। अब मैं इसके बाद करने लगा हूँ सुपरमैन के ट्रेलर के प्रेडिक्शन, तो वो भी देख लें। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस।